السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے الحمدللہ۔ آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ آپ لوگ ضرور پورا ویڈیو دیکھیے اور تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر اس چینل میں نہیں ہیں تو پلیز آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پیج میں دیکھ رہے ہیں تو ضرور آپ فالو کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ پہلے ایک آیت سے میں شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلی وہی نازل، یعنی آیت قرآنی جو آیت ہے، سب سے پہلی قرآنی آیت یہی نازل ہوئی، اقرأ، یعنی یہ 5 آیت۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سب سے پہلی وہی یہی 5 آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ خلاصہ کلام یہ کہنا چاہتا ہے اس آیت میں کہ علم حاصل کیجئے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب فرض تو ہے، بہت سارے لوگ موبائل کے ذریعے سے بھی علم حاصل کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ نماز کا قاعدہ ہو، نماز کا طریقہ ہو، یا کچھ بھی اسلام کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی احکام ہو، یعنی کوئی بھی عبادت کی صورت ہو، بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، ماں باپ کی خدمت کیسے کرنی ہے، یعنی آپ اسلام کا کچھ بھی آپ ٹاپک لے لیجئے۔ بہت سارے لوگ یا تو مدرسے میں سیکھ رہے ہیں بچے، یا جو عمر دراز ہو چکے ہیں وہ موبائل کے ذریعے سے سیکھ رہے ہیں۔ ایک چیز پہلے میں بتا دوں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ایک چیز یاد رکھیے۔ اور اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا عمر تو 30 سال ہو گیا، 40 سال ہو گیا، تو کیا میرے اوپر بھی فرض ہے؟ جی ضرور فرض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے لیے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اسلامی راستے پر آرام سے گزار سکو اور صحیح حدیث کے مطابق گزار سکو۔ یعنی آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، باتھ روم میں کیسے داخل ہونا ہے، یعنی جو بنیادی چیز ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو جانکاری ضروری ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے۔ آپ کو باتھ روم کیسے جانا ہے، سونے کے وقت کیا طریقہ ہے، کیا دعا ہے، اٹھیں گے تو کیا دعا ہے، دن بھر میں آپ جو چلتے پھرتے ہیں تو کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کس جگہ جانے سے کیا ہوتا ہے، کس جگہ جانے سے نہیں ہوتا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے، یہ سب چیزیں ہر مسلمان کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جنازہ کی نماز کیسے پڑھنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہے۔ لیکن ایک چیز کامن ہے، ایک چیز کامن کیا ہے؟ بہت سارے لوگ موبائل میں خود یہ دیکھا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے عالموں کی تقریر سنتے ہیں، ایسے عالموں کی تقریر سنتے ہیں، مسئلے مسائل سنتے ہیں جو زیادہ تر ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن بہت افسوس ہوتا ہے ان مسلمانوں پر جو صرف موبائل ہی پر ہی نربھر رہ جاتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو علم سیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، ٹھیک، لیکن ایک چیز ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب یہ نہ سوچے کہ بھائی میں تو بزرگ ہو چکا ہوں، میرا عمر اتنا ہو چکا ہے کہ میں مدرسہ نہیں جا سکتا ہوں، لیکن میں موبائل کے ذریعے سے ہی کچھ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ سیکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کے لیے پھر بھی ایک چیز، ایک خاص کر کے نیم آپ کے اوپر بھی نافذ ہوتا ہے، ایک نیم آپ کے اوپر بھی واجب ہوتا ہے۔ اور وہ نیم کیا ہے، وہ قانون کیا ہے کہ آپ کے پاس یا آپ کوئی بھی علم سیکھے، کوئی بھی علم، ایک طریقہ ہی کیوں نہ ہو، آپ کیا کریں، اس کو اچھے سے جانچ پڑتال کریں۔ آپ کسی اچھے عالم کے پاس جائیں کہ بھائی آپ یہ بتاؤ، کسی مسجد کے امام سے جا کے آپ پوچھئے کہ امام صاحب، مولوی صاحب، میں یہ حدیث، میں یہ طریقہ، میں یہ ادب اس موبائل میں، اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، اس عالم کے ذریعے سے میں نے سیکھا، کیا یہ صحیح ہے یا ضعیف؟ کیونکہ بہت سارے عالم یوٹیوب میں بہت سارے کچھ بولتے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں، بہت سارے طریقے بتاتے ہیں، لیکن بہت سارے مسئلے مسائل صحیح نہیں ہوتے ہیں، غلط ہوتا ہے، ضعیف حدیث ہوتی ہے۔ لیکن عوام لوگ، مسلمان لوگ جو عالم نہیں ہوتے ہیں، جو مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، جو تخریج کی بحث اور بہت ساری جو کتابیں ہیں، یعنی حدیث کو پرکھنے کی، جانچنے کی، پڑتال کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی، ان کو یہ سب چیز نالج نہیں رہتا ہے،
तो वो क्या सोचता है कि चलो ये बता रहा है तो यही सही है, लेकिन नहीं। मुसलमान भाइयों, आपसे दिली गुजारिश है कि आप लोग मोबाइल देखते हैं, ठीक है, आपके ऊपर इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ये ठीक है, आपके ऊपर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि आप नमाज आराम से पढ़ लो, सही तरीके से पढ़ लिए जाओ, वज़ू सही तरीके से कर लिए जाओ। यानी बुनियादी चीज़ जो आपकी दिनों में हर रोज़ जो आप काम करते हैं, उस काम में जो इस्लामी कानून है, वो सब जो बेसिक चीज़, जो बुनियादी चीज़ बोला जाता है, वो सब आप सीख रहे हैं मोबाइल से, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी है, आपका उम्र कितना ही ज़्यादा हो जाए, आप अगर 60 साल के भी हो गए, अगर आपका उम्र 75 साल का ही क्यों ना हो, आपके लिए फिर भी ज़रूरी है कि आप उस हदीस की, आप उस दुआ की, आप उस तरीका की, यानी नमाज़ पढ़ने का तरीका, वज़ू बनाने का तरीका, घर में दाखिल होने का तरीका, बाथरूम में दाखिल होने का तरीका, यानी आप कहीं भी कुछ भी काम सीखते हैं, इस्लामी काम, इस्लामी तरीका, इस्लामी दुआ, तो आप उसकी जांच पड़ताल करें। आपको ये टाइम नहीं है कि आप किसी लाइब्रेरी में जाओ, आपको ये तौफीक नहीं मिलती है कि आप कहीं दूर जाओ, तो लेकिन आप किसी बगल ही में जो मस्जिद के इमाम होते हैं, जो अच्छे आलिम हैं, जो आपको सही हदीस की रोशनी में आपको बताएंगे कि ये सही है या गलत, आप उसके पास जाइए, आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए कि भाई मैं ये इल्म सीखा हूँ पूरा मोबाइल से, यूट्यूब के ज़रिए से मैं ये तरीका सीखा हूँ, तो भाई आप बताओ कि ये तरीका सही है या नहीं। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, अगर आप सिर्फ यूट्यूब चैनल को देखकर अगर कुछ सीखते हैं, अगर बाय द वे कि अगर वो हदीस, वो तरीका अगर गलत पाया गया, अगर वो सही हदीस के मुताबिक अगर पाया नहीं गया, तो यकीन जानिए आपकी गिरफ्तारी होगी। अल्लाह ताला पूछेगा आपको कि आपने जो इल्म सीखा तो क्या आपने इसकी जांच पड़ताल की। अगर जांच पड़ताल नहीं की, आपने उसकी तहकीक नहीं किया कि ये सही है या गलत, और आप उसी तरह आप अमल करते रहे, तो आपको नेकी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप इल्म हासिल कीजिए, लेकिन सही इल्म हासिल कीजिए, नफ़ा बख्श इल्म हासिल कीजिए, यानी जो आपको नफ़ा देगा, आपको फ़ायदा देगा। आपको ऐसा इल्म हासिल नहीं करना है कि आपका वो इल्म आपके लिए बर्बादी का सबब बने, आपका वो इल्म आपको जहन्नम में जाने का सबब बने। नहीं, आप एक ही दुआ क्यों ना सीखें, आप उसकी जांच करें, आप उसकी तहकीक करें। आपके पास फ़ोन है, अल्लाह ताला ने हमें सहूलियत दिया है, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें नियामत दी है कि हम किसी को भी फ़ोन करके, हम जो अच्छे आलिम हैं, अहले हदीस के जो अच्छे आलिम हैं, कुरान व सही हदीस के जो आलिम हैं, जानने वाले, हम उनको कॉल लगा कर पूछ सकते हैं कि आलिम साहब, मौलाना साहब, आप ज़रा बताइए कि मैंने ये दुआ सीखा, क्या ये दुआ सही है, सही हदीस से साबित है या नहीं। ये जो तरीका मैंने सीखा, क्या ये तरीका सही है कि नहीं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। बहुत सारे लोग जब वज़ू बनाते हैं, तो वज़ू बनाते कैसे हैं? पुराने लोग जब अक्सर लोगों को देखते होंगे कि वो पानी लेते हैं और अलग अलग करते हैं, मुंह में अलग 3 बार डालते हैं, नाक को अलग 3 बार धोते हैं। लेकिन हालांकि ये सही नहीं है, गलत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। वो एक ही बार देख लिया होगा या सुन लिया होगा, बस उसी पर वो अमल कर रहा है। लेकिन तरीका असल क्या है कि एक ही बार पानी ले और आधा पानी मुँह में और आधा पानी नाक में कुल्ली करे और नाक को अच्छे से झाड़े, इस तरह है। तो आपसे दिली गुजारिश है कि आप कोई भी इल्म सीखें, आप एक दुआ ही क्यों ना सीखें, एक छोटी सी दुआ क्यों ना हो, आप उसकी तहकीक करें, आप उसकी जांच पड़ताल करें, किसी अच्छे आलिम से पूछें कि मैंने ये सीखा, क्या ये सही है या नहीं। अल्लाह ताला ने हमें बहुत आसान, इतना आसान रास्ता हमें अल्लाह ताला ने दिया है कि हम घर बैठे अगर हम 1 घंटा अल्लाह के दिन को सीखने के लिए अगर हम लगाएंगे, तो हम अपने रोज़मर्रा में जो चीज़ें शामिल है उसको हम सीख सकते हैं। बाथरूम कैसे जाया जाए, बच्चों की तरबियत कैसे किया जाए, उनका नाम कैसे रखा जाए, अकीका कैसे किया जाए, जनाजा की नमाज़ कैसे पढ़ाया जाए, कुर्बानी कैसे किया जाए, दुआ मांगने का तरीका कैसे है, आप बाथरूम में जाते कैसे क्या करना है, जब जमाई आए तो कैसे करना है, नाक झाड़े तो कैसे क्या करना है। ये सब बेसिक चीज़ है, बुनियादी चीज़ है, और ये सब हमें सीखना है, हम पर कंपलसरी है, वाजिब है। तो आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग कोई भी इल्म सीखे, आप उसकी पहले तहकीक करें, फिर उस पर अमल कीजिए। और रही गुजारिश दूसरी चीज़ कि इंशाअल्लाह मैं हत्तल इम्कान इतना कोशिश करूँगा कि बेसिक चीज़ जो बुनियादी चीज़ है, मैं
पूरी तमाम चीज़ों को, जो बुनियादी चीज़ है उसको मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल के ज़रिए से मैं आपको सिखाता रहूँगा। इंशाल्लाह सोने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया था, और आगे इंशाल्लाह मैं जनाजे के तरीका, नमाज़ पढ़ने का तरीका, वज़ू बनाने का तरीका इंशाल्लाह आगे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग कुछ भी सीखें आप किसी आलिम से पूछ लें। और दूसरी बात, अब ये मत कहिएगा किसी आलिम तो यूट्यूब में वो बता रहा है तो क्या वो आलिम गलत हो गया, क्या वो आलिम सही हो गया। आपको इसकी कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आलिम आपको गलत दिखता है, अगर आपको कोई आलिम उस आलिम के बारे में बताता है कि इस आलिम की तकरीर ना सुनो, तो आप ना सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ खुद सेल्फ स्टडी करके वो सही और ज़ईफ़ की तमीज़ वो नहीं करते हैं, सही और ज़ईफ़ की वो फ़र्क नहीं करते हैं। वो खुद अपना सेल्फ स्टडी, खुद से वो स्टडी करके वो मसले को इधर से उधर घुमा फिरा करके वो बयान करते हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसे जो मसले मसाइल बयान करने वाले होते हैं, इन लोगों से बच के रहिए। आप अगर यूट्यूब चैनल में अगर किसी को भी देखते हैं तो जो अच्छे हैं, मदनी है, सलफ़ी है, इन लोगों की तकरीर सुनिए। ख़ास करके मैं 1-2-4 नाम सुना देता हूँ। शेख सनाउल्लाह मदनी साहब, शेख मारूफ सलफ़ी साहब, यानी अहले हदीस के जो बड़े बड़े आलिम हैं, शेख अब्दुल हसीब मदनी साहब, शेख अबू ताहिर सलफ़ी साहब, शेख जाफ़र अल हिंदी साहब, शेख ज़ैद पटेल साहब, शेख सरफराज फैज़ी साहब, शेख किफ़ातुल्लाह सनाबली साहब, और बहुत सारे इनके अलावा और बहुत सारे आलिम हैं। इन लोगों की तकरीर सुना कीजिए। और बहुत सारे आलिम जो ऐसे हैं, आलिम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो लोग सिर्फ सेल्फ स्टडी करके वो लोग खुद मसले मसाइल को उलट पलट करके बयान करते हैं। तो बराए मेहरबानी आप ऐसी चीज़ों पर ना पड़े या ऐसी चीज़ों को ना सीखें जो ज़ईफ़ है, जो सही हदीस से साबित नहीं है। अगर आप कुछ भी सीखें, किसी अच्छे आलिम से पूछ लीजिए ज़रूर कि ये सही है या नहीं। आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग इल्म सीखिए, क्योंकि इल्म के बगैर आपकी ज़िंदगी कामयाब नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। और इबादत एक काम है, और अगर हम कोई भी काम करें, अगर सही तरीके से ना करें तो वो काम काबिल कबूल नहीं। अगर हम किसी खेत में काम करने के लिए जाए, अगर खेत में काम जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से अगर हम नहीं करेंगे तो हमको एक फसल भी नसीब नहीं होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं, ये भी अल्लाह ताला ने हमें काम करने के लिए कहा है, नमाज़ पढ़ने के लिए कहा है। तो अगर हम नमाज के मुताबिक ना पढ़े, नमाज को सही हदीस के मुताबिक ना पढ़े, तो वो नमाज हमारे लिए काबिल कबूल नहीं, वो नमाज कबूल नहीं करेगा अल्लाह ताला, बल्कि उल्टा हमें गुनाह होगा। तो नमाज को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए क्या करना है, हमें इल्म सीखना है, हमें जानना है कि नमाज को कैसे पढ़ना, कौन सी दुआएं पढ़ना, कैसे हाथ उठाना, कैसे वज़ू बनाना है। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है। आपको अल्लाह ताला ने औलाद दी है, बच्चे दिए हैं, तो बच्चे को कैसे, बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, बच्चों को कैसे बड़ा करना है, क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है, ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है कि बच्चों को क्या देना है, क्या नहीं देना है। माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो माँ बाप की कैसे खिदमत करनी है, ये सब सारी चीज़ें आपको सीखना है। और सीखेंगे कैसे, कुरान हदीस से सीखेंगे। तो आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, इल्म सीखने का रिवाज बनाइए, तब हम कौम आगे बढ़ेंगे और हम मोमिन बन सकेंगे। तो आप लोगों से दिली गुजारिश है कि आप लोग खुश रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, और ज़रूर इल्म सीखिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम लोगों को सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और इल्म सीखने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।